Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 4 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड इन द 10th एडिशन ऑफ द एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट। ये फिलेंथ्रॉफी लिस्ट बेसिकली क्या होती है? ये लिस्ट उन लोगों की लिस्ट होती है जो कि बहुत डोनेशन करते हैं, करेक्ट, जिनके डोनेशन से हम देखें थाउजेंड्स करोड्स में इनके डोनेशन होते हैं, एंड इनके डोनेशन से हम देखते हैं काफ़ी लोगों को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में काफ़ी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अभी ये 10th एडिशन था, करेक्ट। ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड एल्डेलगिव, इन दोनों के द्वारा मिलकर 10th एनुअल ये एडिशन रिलीज किया गया था एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट का, जिसमें से शिव नादर ने यहाँ पर टॉप किया है। 78 ईयर्स के हैं ये, HCL टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं, एंड ये इंडिया के मोस्ट जनरस मैन आए फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इन्होंने 2042 करोड़ रुपए की यहाँ पे डोनेशन करी। सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं फिर अजीम प्रेम जी, करेक्ट, एंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं मुकेश अंबानी, यहाँ पे याद रखेंगे। तो फिर से अगर बात करें तो शिव नादर की ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जनरस पर्सन बने, इन्होंने टॉप किया फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। सेकेंड पोजीशन पे अजीम प्रेम जी आ जाते हैं और थर्ड पोजीशन पे मुकेश अंबानी। एंड ये 10th एडिशन है आपका एल्डेलगिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रॉफी लिस्ट का, यहाँ पे शिव नादर ने टॉप किया जो कि इंडिया के मोस्ट जनरस पर्सन बने। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि इलेक्शंस के बारे में बच्चों को स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, उनके बारे में, इलेक्शंस के बारे में इनको पढ़ाया जा सके, सिखाया जा सके कि कैसे इलेक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराने के लिए इवन यहाँ पर सिलेबस में NCERT ने बोला कि NCERT के द्वारा भी यहाँ पे चैप्टर्स में इलेक्शन से रिलेटेड यहाँ पे अवेयरनेस की बात करी जाएगी। तो ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जा सके जहाँ पे इलेक्टोरल लिटरेसी के बारे में स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में, एजुकेशन सिस्टम में यहाँ पे ये चीज़ें बताई जा सके। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन अपॉइंट किया था, किनको? सचिन तेंदुलकर को पहले और फिर राजकुमार राव को, और इन दोनों को यहाँ पे किसके लिए? वोटर अवेयरनेस के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। 3 साल के लिए इनके साथ भी MOU साइन किया गया। ठीक है, चलिए। और 6 स्कूल में 6 से लेके 12 12th क्लास तक बच्चों को यहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी, उनको यहाँ पर बताया जाएगा कैसे इलेक्शंस हमारे वर्क करते हैं और क्या क्या हमारी प्रोसेसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मैं बात करूँ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेंगे? राजीव कुमार। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 1950 में।
दिस एमओयू, ये जो एमओयू साइन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ये एक्सटेंड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप इवेंट प्रोग्राम जो कि है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द पेट्रोल एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया दैट वाज डीकमीशन रिसेंटली। तो देखो ये एयरक्राफ्ट जो कि है इल्यूशन 38 सी ड्रैगन, इंडियन नेवी के द्वारा इसको डीकमीशन करा गया था। करेक्ट, आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ सर्विस। ये कहाँ पर था इसकी सर्विस? आईएनएस हंसा पे ये आपका कमीशन था गोवा में। एंड आफ्टर 46 ईयर्स ऑफ सर्विस इल्यूशन 38 जो कि सी ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, इसको डीकमीशन कर दिया है। इसके अलावा बात करें, ये तो था इंडियन नेवी ने डीकमीशन किया। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में अभी मिग 29 को डीकमीशन कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स ने डीकमीशन किया इल्यूशन 38 एंड मिग 21 एयरक्राफ्ट को। इंडियन नेवी ने इल्यूशन को और इंडियन एयरफोर्स ने मिग 21 एयरक्राफ्ट को डीकमीशन करा। नेक्स्ट, कौन सी कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू फुल्ली स्टरलाइज देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन? स्ट्रीट डॉग्स को स्टरलाइज करने के लिए कौन सी कंट्री वो पहली बन गई इन द वर्ल्ड? वो है भूटान। ठीक है, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कंप्लीटली स्टरलाइज एंड वैक्सीनेट देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन इन भूटान। करेक्ट। एंड ये स्टरलाइजेशन क्या होती है? इससे क्या होगा, प्रोसीजर होता है, इससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे निकाल दिया जाता है ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए। तो सभी स्ट्रीट डॉग्स को भूटान में यहाँ पे स्टरलाइज कर दिया गया है और इसीलिए ये फर्स्ट कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड जिन्होंने एंटायर स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को स्टरलाइज कर दिया। यहीं पर हम देखें तो नेशनल डॉग पॉपुलेशन मैनेजमेंट एंड रेबीज कंट्रोल प्रोजेक्ट, ये एक 14 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था। 2009 में लॉन्च किया था और अभी 2023 में ये फिनिश हुआ है। अंडर दिस प्रोजेक्ट 1,50,000 स्ट्रे डॉग्स को यहाँ पे स्टरलाइज किया गया एंड 32,000 पेट डॉग्स को यहाँ पे माइक्रोचिप किया गया एंड इवन स्टरलाइज किया गया। करेक्ट, ये जो प्रोग्राम था इम्प्लीमेंट किया गया था बाय अ ग्लोबल एनिमल चैरिटी कॉल्ड ह्यूमेन सोसाइटी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट आ जाता है आईसीआईसीआई बैंक। इन्होंने अभी रिसेंटली एनेबल किया अपने कस्टमर्स को कि दे कैन पे टू एनी मर्चेंट क्यूआर कोड यूजिंग देयर डिजिटल रुपी बाय आईसीआईसीआई बैंक। राइट, द डिजिटल रुपी एप्लीकेशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। तो ये डिजिटल रुपी से पे कर सकते हैं यूजिंग देयर ई रुपी एप्लीकेशन ऑफ आईसीआईसीआई बैंक एंड किसी भी मर्चेंट्स को यूजिंग द क्यूआर कोड ये पेमेंट भेज पाएंगे। इससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, कन्वीनियंस बढ़ेगी एंड ज़्यादा कस्टमर्स ये अट्रैक्ट कर पाएंगे फॉर द पेमेंट। इससे क्या होगा, डिजिटल रुपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। डिजिटल रुपी जिसको हम सीबीडीसी बोलते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। करेक्ट, ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई थी, 2 सेगमेंट में लॉन्च की गई थी। एक आपका था रिटेल सेगमेंट और एक था होलसेल सेगमेंट के लिए लॉन्च की गई थी। ठीक है, चलिए आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? संदीप बख्शी। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? मुंबई महाराष्ट्र में। और कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्सिगो। इन दोनों के बीच में टाई अप हुआ ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा सके जो कि है इक्सिगो एयू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। अब ये जो क्रेडिट कार्ड होगा ना, ये ट्रैवल पर्पसेस के लिए लॉन्च किया गया। जो इंडिविजुअल्स को ट्रैवल करना पसंद है, उनको बेटर ट्रैवल एक्सपीरियंस चाहिए, मॉडर्न ट्रैवलर्स हैं, तो उनके लिए ये आपका को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया, इक्सिगो एयू को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आपका ट्रैवल क्रेडिट कार्ड रहेगा जो आपको वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएगा इन फ्लाइट्स, ट्रेन्स, बसेस एंड होटल्स एंड इवन 10% का यहाँ पर ऑफ मिलेगा अगर आप इस कार्ड के थ्रू इक्सिगो की वेबसाइट से कुछ बुकिंग कराते हैं। इवन अपार्ट फ्रॉम दिस 8 रेलवे लॉन्च एक्सेस, 8 एयरपोर्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्चेस एक्सेस और 1 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस पर ईयर यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एनुअल फी यहाँ पे रहेगी फॉर द फर्स्ट ईयर 999 एंड द फी विल बी वेव्ड ऑफ बाय स्पेंडिंग 1000 rupees in the initial 30 days and the annual fee for the second year will also be waived with the minimum spend of 1 lakh rupees। इसके अलावा अगर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर्स जयपुर राजस्थान में, इस्टेब्लिश 1996 में किया गया। इक्सिगो की अगर बात करें तो को फाउंडर कौन है? आलोक बाजपेयी, रजनीश कुमार। हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा और 2007 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रशिया मेड इट ईजियर फॉर इंडियंस टू ओपन एंड यूज बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ रशिया।
इससे क्या होगा कि जब भी कोई इंडिविजुअल, कोई भी इंडियन रशिया में जाएगा तो ऑन अराइवल वो एक बैंक से अपना कार्ड ऑब्टेन कर सकता है, जो कि वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में उसके काम आएगा। ये बेनिफिट करेगा इंडियन टूरिस्ट को एंड इंडियन स्टूडेंट्स जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं एंड जो स्टडी करना जानना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियंस कैन अप्रोच इंडियन बैंक, जो कि पार्टनर रहेगा आपका इस एग्रीमेंट के लिए, और सेंट्रल बैंक ऑफ रशियन फेडरेशन के लिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे रशिया ने इंट्रोड्यूस किया था ई वीज़ा फैसिलिटी इंडियंस के लिए फ्रॉम 1 अगस्त 2023। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बीपीसीएल एंड गेल, इन दोनों के बीच में एक 15 साल का एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वर्थ 63,000 करोड़ रुपीस, ताकि जो प्रोपेन गैस है उसका सप्लाई किया जा सके। राइट, आई रिपीट, बीपीसीएल एंड गेल इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया 15 साल के लिए 63,000 करोड़ रुपीस के लिए टू द सप्लाई ऑफ प्रोपेन टू गेल्स प्रोपेन डीहाइड्रोजनेशन एंड पॉलीप्रोपीन प्लांट प्रोजेक्ट, जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। तो प्रोपेन को सप्लाई करने के लिए टू द गेल्स पीडीएचपीपी प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में का, उसके लिए 15 साल का एग्रीमेंट साइन किया गया। और गेल का अपकमिंग उसर बेस्ड पीएचडीपीपी प्लांट, ये इंडिया का फर्स्ट पीडीएच प्लांट रहेगा, जो अपना ऑपरेशंस 2025 में स्टार्ट करेंगे। तो सिंपल याद रखेंगे, प्रोपेन गैस की सप्लाई के लिए टू गेल्स पीडीएच प्लांट जो महाराष्ट्र में है, उसको सप्लाई के लिए, जो कि ऑपरेशन होगा 2025 में स्टार्ट, जिसका 15 साल के लिए यहाँ पे बीपीसीएल एंड गेल ने एग्रीमेंट साइन किया 63,000 करोड़ रुपीस के लिए, और किसके लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ प्रोपेन गैस। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड विद रोशनी नैयर प्राइज 2023। तो रोशनी नैयर प्राइज से किनको सम्मानित किया गया और क्यों सम्मानित किया गया? देखो, सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद रोशनी नैयर प्राइज, और किस लिए? फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। फॉर एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। करेक्ट, इनको इस प्राइज से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ फंक्शन जो कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे हुआ एट न्यू दिल्ली। करेक्ट, ये नैयर फाउंडेशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ ब्यूरोक्रेट डॉक्टर रोशनी नैयर, जो कि एक आईएएस थी। इस अवार्ड के दौरान एक साइटेशन एंड एक ट्रॉफी और एक कैश प्राइज 10 लाख रुपए का दिया जाता है। करेक्ट, 2022 में इसका पहला एडिशन हुआ था, और ये सेकेंड एडिशन था रोशनी नैयर अवार्ड का, जो कि सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत को दिया गया फॉर द एम्पावरिंग ट्राइबल वीमेन। ठीक है, इन्होंने 6000 से भी ज़्यादा ट्राइबल वीमेन का इन छत्तीसगढ़ यहाँ पे मैंने बेनिफिट प्रोवाइड कराया उनको, उनकी अपलिफ्टमेंट करी। करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नक्सल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वहाँ से उनको बचाकर उनको जॉब्स प्रोवाइड कराना, बेटर एक लिविंग प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पर इनको सम्मानित किया गया रोशनी नैयर प्राइज से। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर रोशनी नैयर आईएएस थी, इनके बिहाफ पे ये अवार्ड को सेटअप किया गया था, सेकेंड एडिशन था, और यहाँ पर आप देखेंगे दीनानाथ राजपूत को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद दिस प्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023। ये एक रिकॉग्निशन होता है जो कि हाईएस्ट रिकॉग्निशन दिया जाता है यूएन के द्वारा। करेक्ट, फॉर इन्वायरमेंट के लिए जो लोग काम करते हैं। अब ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है, ये इंस्टीट्यूशंस को भी दिया जा सकता है, करेक्ट, ग्रुप्स को भी दिया जा सकता है, और इसीलिए यहाँ पर जोसेफिन बेलमेट, एलन मैकार्थ फाउंडेशन, ब्लू सर्कल, जोसे मैनुअल मॉलर एंड CSIR साउथ अफ्रीका, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया विद चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड यूएनईपी के द्वारा। करेक्ट, ताकि क्योंकि इन्होंने हमारे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़े ऐसा सॉल्यूशन निकाला कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को इन्वायरमेंट से अलग कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जो इतना प्लास्टिक फैलता जा रहा है उसको कैसे हम कम कर सकते हैं, कैसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाके हम प्लास्टिक पॉल्यूशन को बीट कर सकते हैं। इसीलिए इनको यहाँ पे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नायरोबी, कीनिया में। एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूएनईपी की? वो है इंगर एडसन। नेक्स्ट है जस्टिस राजेंद्र मेनन, इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द चेयरमैन ऑफ EFT फॉर 4 ईयर्स। 4 साल के लिए जस्टिस राजेंद्र मेनन को अपॉइंट कर लिया गया है एज द चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। EFT क्या है? आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल। ही विल बी सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ ट्रिब्यूनल टिल 6 जून 2027, एंड इनिशियली इनको 2009 में अपॉइंट किया था, इन्होंने सक्सीड किया था जस्टिस वीरेंद्र सिंह को।
नेक्स्ट है कोटक जनरल इंश्योरेंस या फिर कोटक महिंद्रा बैंक एंड कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, इनके द्वारा एक पैक्ट में इन्होंने साइन किया है जुरिच इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और ये जुरिच इंश्योरेंस कंपनी 51% स्टेक बाय कर रही है कोटक जनरल इंश्योरेंस में फॉर 4051 करोड़ रुपीज। आई रिपीट, जुरिच इंश्योरेंस 4051 करोड़ रुपीज स्पेंड करके, इन्वेस्ट करके 51% स्टेक बाय कर रही है कोटक जनरल इंश्योरेंस में। करेक्ट। फिर याद रखेंगे ये जो वैल्यूएशन है कोटक जनरल इंश्योरेंस की वो लगाई गई है 8000 करोड़ रुपए ऑन अ पोस्ट मनी वैल्यूएशन, एंड ये जो ट्रांजैक्शन है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 30th of June 2024। ये एक सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है बाय अ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंश्योरर इन एन इंडियन नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है आर्मी के लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड के द्वारा यहाँ पर अभी टेस्ट कराए गए, फायरिंग ऑफ 70 mm रॉकेट्स एंड 20 mm टरेंट गन्स की, यहाँ पे टरेट गन्स की टेस्ट किया गया। तो याद रखेंगे प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का है, इनके द्वारा 2 टेस्ट करे गए बोथ डे में और नाइट में भी, ताकि इसकी कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। एंड नहीं, ये जो आपकी 70 mm रॉकेट्स हैं एंड 20 mm टरेट गन्स हैं, इनको यहाँ पे टेस्ट किया गया। एंड इट वॉज कैरिड आउट बाय 1st LCH स्क्वाड्रन फ्रॉम एयरफोर्स स्टेशन जो कि लिकाबली में है इन अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है रेलटेल, इन्होंने सेटअप किया एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई, जिसके लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया गया है। किसके द्वारा? रेलटेल के द्वारा। ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इनका एम क्या रहेगा कि हम इंश्योर कर सकें अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट एंड स्किल्ड मैन पावर, कि जो भी मैन पावर को हम यहाँ पे एम्प्लॉय करेंगे वो स्किल्ड होना चाहिए। एंड किसमें? रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग, करेक्ट, यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई। इसके साथ साथ ये जो सेंटर है ये सर्टिफिकेट्स भी ऑफर करेगा एंड डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करेगा विद द हेल्प ऑफ IITs एंड IIMs के साथ कोलैबोरेट करके। इससे क्या होगा, अगर ट्रेंड इंडिविजुअल्स होंगे तो जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, बिकॉज ऐसे केस में चांसेस ऑफ एरर ना के बराबर होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी एरर होता है तो इट कैन लीड टू अ वेरी बिग इंसिडेंट। करेक्ट। तो IIMs एंड IITs के साथ यहाँ पे कोलैब करके सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा कोर्सेज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। एंड ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसका एम रहेगा यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना टू द स्किल्ड मैन पावर इन रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग्स। नेक्स्ट आ जाते हैं। फिर झारखंड ने अप्रूव किया अबुआ आवास योजना। ये अबुआ आवास योजना क्या है? बेसिकली ये घर प्रोवाइड कराने के लिए, पक्का घर प्रोवाइड कराने के लिए लॉन्च किया गया। आवास का मतलब आ जाता है होम बेसिकली, ठीक है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पे पुअर लोगों को, होमलेस लोगों को, 8 लाख ऐसे होमलेस एंड पुअर लोगों को पक्का हाउसेस प्रोवाइड कराने की स्कीम रहेगी ये, करेक्ट। टू प्रोवाइड 3 रूम 1 किचन हाउस विद अ टोटल एरिया ऑफ 31 स्क्वायर मीटर, करेक्ट, इन द नेक्स्ट 2 years टाइमलाइन। तो 8 लाख लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराने की बात की गई घर आवास, अबुआ आवास योजना, और यहाँ पे 3 फेज में इसको लॉन्च किया जाएगा। एंड 16,320 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च करने की बात की गई झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। 10th एल्डल गिव ह्यूरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में किसने टॉप किया? शिवनादर जी ने। ECI ने साइन किया MOU मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, ताकि इलेक्टोरल लिटरेसी को लाया जा सके टू क्लासरूम्स अक्रॉस इंडिया। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स ने डीकमीशन किया ओल्ड इल्यूशन 38 एंड MiG 21 एयरक्राफ्ट को। भूटान वो पहली कंट्री बन गई टू फुल्ली स्टरलाइज देयर एंटायर स्ट्रीट डॉग्स पॉपुलेशन। ICICI बैंक ने एनेबल किया ट्रांजैक्शन टू मर्चेंट QR कोड यूजिंग डिजिटल रुपी एप्लीकेशन। AU स्मॉल फाइनेंस एंड इक्सिगो ने लॉन्च किया प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। रशिया मेक्स इट ईजियर फॉर इंडियंस टू ओपन एंड यूज बैंक अकाउंट्स। नेक्स्ट, BPCL एंड गेल, इन्होंने 63,000 करोड़ रुपीस का पैक्ट साइन किया टू सप्लाई प्रोपेन फॉर इंडियाज फर्स्ट PDH प्लांट इन महाराष्ट्र। सोशल वर्कर दीनानाथ राजपूत फ्रॉम बस्तर रिसीव्ड रोशनी नैयर प्राइज 2023। UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023, यहाँ पे इनको ऑनर किया गया फॉर दिस अवार्ड बिकॉज इन्होंने इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाला टू कॉम्बैट प्लास्टिक पॉल्यूशन। देन जस्टिस राजेंद्र मेनन को रीअपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ AFT। जुरिच इंश्योरेंस ने 51% स्टेक बाय किया कोटक जनरल इंश्योरेंस में फॉर 4,051 करोड़ रुपीस। इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया टेस्ट फायरिंग ऑफ रॉकेट्स एंड टरेट गन्स फ्रॉम प्रचंड। रेलटेल ने सेटअप किया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन रेलवे सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन। झारखंड कैबिनेट ने अप्रूव किया अबुआ आवास हाउसिंग स्कीम को। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे फॉर प्रीवियस वीक्स एंड मंथ।
नेक्स्ट पर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। ये रिपोर्ट आपकी रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर है इन इंडिया 2022। ये एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि पब्लिश की गई मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बताया कि एनुअली इंडिया में 2022 में हमने 4 लाख से भी ज्यादा एक्सीडेंट्स ऑब्जर्व करे। फिर इसी रिपोर्ट ने बताया तमिलनाडु वो स्टेट बनी विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, और ये 5th कॉन्जिक्यूटिव ईयर के लिए तमिलनाडु ने यहाँ पे टॉप किया है विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, जो कि है ऑलमोस्ट 64,000, और ये 13.5% आ जाता है ऑफ ऑल द एक्सीडेंट्स जो 2022 में हुए इंडिया में। फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉलमार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले ये हॉलमार्किंग क्या स्कीम होता है, ये हॉलमार्किंग होता क्या है, जब आपके किसी भी मेटल को ग्रेड करा जाता है तो उसको हॉलमार्किंग कहते हैं। जनरली हम इसको रेफर करते हैं गोल्ड से, कि गोल्ड की प्योरिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं कि हम उसकी प्योरिटी का कैसे चेक कर सके, कैसे पता लगेगा कि वो गोल्ड प्योर है या नहीं, तो वो हॉलमार्किंग की मदद से पता लगता है। इसी से रिलेटेड अगर याद हो तो 2021 में एक स्टेप लिया गया था कि जो भी आपकी गोल्ड की ज्वेलरी होगी उस पर एक HUID नंबर होगा, जो कि है हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 6 डिजिट का आपका एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होगा, जिससे आपकी जो गोल्ड है उसकी प्योरिटी के बारे में पता लग सके। और हर ज्वेलरी का एक अपना खुद का अलग से HUID नंबर होगा। जैसे हर इंडिविजुअल आदमी का एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही गोल्ड की ज्वेलरी का भी आपका एक HUID नंबर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट वो पहली स्टेट बनी इन इंडिया में जिसकी हर डिस्ट्रिक्ट में, एंड यहाँ पे 14 डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट के पास, उसकी हर डिस्ट्रिक्ट में आपका एक हॉल मार्किंग सेंटर है। तो ये कौन सी स्टेट है, ये है केरला। मार्क करके चलेंगे। यहीं पे देखें, केरला जो गोल्ड बिजनेस है केरला में वो वर्थ है मोर देन 1 लाख करोड़ विद एन एनुअल सेल्स ऑफ 250 टन्स। In Kerala, there are about 12,000 gold merchants and majority of them are holding BIS registration. नेक्स्ट आ जाता है, और एक और चीज़ यहाँ पे जो HUID नंबर है ना, इससे आप अपने गोल्ड ज्वेलरी को ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकते हैं जो भी कंज्यूमर्स हैं। मूविंग ऑन, उड़ान स्कीम सक्सेसफुली कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स। RCS उड़ान स्कीम ने अभी कितने साल अपने पूरे करे हैं? तो RCS उड़ान स्कीम जो है इन्होंने अभी अपने 6 साल पूरे करे हैं। RCS उड़ान स्कीम क्या है? रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 2016 में, ताकि जो कॉमन मैन है वो भी फ्लाई कर सके यूजिंग द एयरक्राफ्ट, राइट। प्लेन्स में वो ट्रैवल कर सके, जिससे उनका जो टाइम है ट्रैवल का वो कम हो सके, राइट। इवन प्राइसेस को रिड्यूस किया जा सके, कम करा जा सके, ताकि वो ईजी हो सके कॉमन मैन के लिए फ्लाई करना। तो RCS उड़ान स्कीम कितने साल पूरे हो गए? 6 साल पूरे हो गए। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंडर 2016 में इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एंड इसका एम क्या था? 10 साल तक इस स्कीम को यहाँ पे रन करा जाएगा। एंड इसी के साथ साथ जो पहली रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम थी उड़े देश का आम नागरिक की स्कीम के अंडर, वो 2017 में थी, लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। कहाँ से कहाँ तक? शिमला से दिल्ली तक थी। शिमला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ टाई अप करा ताकि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके। तो वो है रिलायंस रिटेल। इन्होंने SBI कार्ड्स के साथ टाई अप किया है ताकि एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को यहाँ पर लॉन्च किया जा सके। तो इंपॉर्टेंट बनता है ऑप्शन ए, यहाँ पर आपका ठीक रहेगा। फिर यहीं पे देखेंगे ये जो कार्ड है ये 2 वेरिएंट में आता है, एक तो है रिलायंस SBI कार्ड और दूसरा है रिलायंस SBI कार्ड प्राइम। एंड इसको रिसाइकल्ड प्लास्टिक से यहाँ पर आपका बनाया जाएगा और इसको पावर किया जाएगा रुपे कॉन्टैक्टलेस टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया टू रिसीव द जिफ्ट IFSC रजिस्ट्रेशन। तो जिफ्ट सिटीज IFSC रजिस्ट्रेशन को पाने वाला वो पहला इंश्योरेंस कंपनी कौन सी बन गई है? वो है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। ये जो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस है इसको इंडिया फर्स्ट लाइफ के नाम से भी जानते हैं, और ये 3 बैंकों से बना है, 3-वे वेंचर है। एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो होल्ड करता है 65% स्टेक, फिर आ जाता है आपका कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो 26% होल्ड करता है, और फिर आ जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि होल्ड करता है 9% इन दिस पर्टिकुलर स्टेक, ठीक है। अगर फिर बात करें इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की ही, यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? RM विशाखा
नवंबर 2009 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू व्हाट परसेंट इन 2024। तो 2024 में जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की गई है वो है 2.9% की। वहीं पे 2023 की जो ग्लोबल ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 3% की। यहीं पे अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूं तो इन्फ्लेशन 2023 में कितनी एक्सपेक्टेड है 6.9% की, और 2024 में इन्फ्लेशन है 5.8% की। राइट, इवन बोला जाने आने वाले टाइम में हम देखेंगे देयर इज अ हाई चांस कि रिसेशन भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन। तो राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन 1। आईएमएफ की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। एंड इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। तो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया ग्लोबल ग्रोथ रेट टू स्लो टू 2.9% इन 2024 एमिड इकोनॉमिक स्लोडाउन। अभी जीता एएफसी प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर ग्रास रूट लेवल। तो ब्रॉन्ज अवार्ड जीता है एआईएफएफ ने, जो कि है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने। लेकिन अगर हम बात करें गोल्ड की, सिल्वर की और फिर आ जाता है ब्रॉन्ज, तीनों देखते हैं। गोल्ड किसने जीता इस एएफसी प्रेसिडेंट्स रिकॉग्निशन अवार्ड, तो गोल्ड अवार्ड जीता है फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया ने, फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सिल्वर अवार्ड किसने जीता, गुआम फुटबॉल एसोसिएशन ने। और ब्रॉन्ज किसने जीता है, एआईएफएफ ने। ठीक है, ये एएफसी के जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं याद रखेंगे, ये 27वां एडिशन था एएफसी एनुअल अवार्ड का, 18 कैटेगरीज में प्रेजेंट किया गया था। करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो एएफसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 है वो किसको दिया गया है, सलीम अल दवसारी को। करेक्ट, ये सऊदी अरेबिया के प्लेयर हैं और इनको यहाँ पे एएफसी प्लेयर ऑफ द ईयर मेन कैटेगरी में, और वीमेन कैटेगरी में कौन है, समांता कैर। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बिलोंग करती हैं, और मेन कैटेगरी में कहां से बिलोंग करते हैं, सऊदी अरेबिया से। नेक्स्ट आ जाता है जैसे इजराइल का, हम जानते हैं जो उनको मिसाइल से प्रोटेक्ट करता है एक सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम। ये क्या करता है, जो भी इनकमिंग मिसाइल्स होती हैं उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। करेक्ट, ताकि सिटी वहां की सेफ रहे। तो ऐसा ही एक सिस्टम इंडिया के द्वारा भी बनाया जा रहा है। पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा उसका, तो वो है LRSAM, जिसका नाम है लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये सिमिलर रहेगा आपका जैसे आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का। एंड इस LRSAM को किसके अंडर बनाया जा रहा है, किस प्रोजेक्ट के अंडर, तो प्रोजेक्ट कुशा के अंडर इसको डेवलप करा जा रहा है। एंड यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये सारा काम देखा जा रहा है, वो है DRDO। करेक्ट, तो इजराइल जैसा आयरन डोम सिस्टम इंडिया में इंप्लीमेंट कराने के लिए इंडिया में बनाया जा रहा है। वो इंडिया के नाम क्या रहेगा उस इंडिया के डिफेंस सिस्टम का, वो है LRSAM लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। नेक्स्ट आ जाता है फिर अभी 22 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जो कि काफी फेमस इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर रह चुके हैं। इनका एक स्टैचू अनवेल किया गया जो कि 22 फीट का है, कहां पर, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। करेक्ट, और याद हो तो सचिन तेंदुलकर को यहाँ पे अभी नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया है, कहां का, नेशनल आइकन अपॉइंट किया गया बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 साल के लिए, ताकि वोटर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे ह्वांगझो एशियन गेम्स कहां पर हुए थे, ह्वांगझो चाइना में हुए थे। अब हम बात करें ह्वांगझो एशियन पैरा गेम्स की, ये भी ह्वांगझो में चाइना में ही हुए। और यहां पे याद रखेंगे इंडिया की 5th पोजीशन आती है ऑफ इंडियन पैरा एथलीट्स, जहां पे उन्होंने 111 मेडल सिक्योर किए, 29 गोल्ड, 31 सिल्वर एंड 51 ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। एंड ये चौथा एडिशन था एशियन पैरा गेम्स का, जो कि ह्वांगझो चाइना में हुआ। यहाँ पे इनका एक मैस्कॉट याद रखेंगे, फीफी, ये आपके मैस्कॉट का नाम रहेगा, जो कि एक डिवाइन वर्ड है। एंड इन पैरा एशियन गेम्स में जिन्होंने टॉप किया वो है चाइना विद 521 मेडल्स, और इंडिया 5th पोजीशन पे आ जाता है विद 111 मेडल्स। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स होमवर्क सेक्शन पे, और ये 3 जो होमवर्क मैं आपको क्वेश्चन दूंगा ये आपको पहले भी दे चुका हूं, और उस वीडियो में मेरे को बहुत कम रिप्लाई देखने को मिला था बच्चों का, इसलिए मैं फिर से दे रहा हूं। एंड मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ पे कमेंट करें क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक, काफी ज्यादा विजिलेंस अवेयरनेस वीक के बारे में अभी यहाँ पे चर्चा हो रही है, सरकार काफी इसको प्रमोट कर रही है, किस लिए है और क्या इसकी थीम रहेगी। दूसरा ऑपरेशन शीशा, यह भी रिसेंटली था कि कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ विच एनिमल। तीसरा सलीम हक, इनका रिसेंटली निधन हो गया, ये किस प्रोफेशन से बिलोंग करते थे। और एक चौथा यहाँ पे रखेंगे, अभी अर्थक्वेक आया एक,
राइट, रात को अर्थक्वेक आया था, उसका एपिसेंटर कहाँ पर था वो आपको मुझे बताना है, राइट। उसका एपिसेंटर किधर था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये 4 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ बच्चे कमेंट करें, क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे, आंसर्स का नीचे बताएंगे मुझे क्या आंसर्स हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि हाँ जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका कुछ बेनिफिट है। लेकिन अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे आंसर्स को तो फिर उसका फ़ायदा नहीं ना। सो लेट्स स्टार्ट। आप यहाँ पे जल्दी से जल्दी वीडियो को बेशक यहीं पॉज कर दो, अभी आगे मत जाना, पॉज कर दो, खत्म होने वाली है वीडियो तो वैसे, लेकिन यहीं पे आप उसको एंड करके अभी सबसे पहला काम आपको यही करना है कि कमेंट करोगे नीचे, करेक्ट। So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.